How are you? Fine, sir. Okay. Actually, I was just waiting for the clock to click 8:10 because you asked me to send you the link at me. You'll be able to join at 8:15. That's why actually I was just waiting. I was doing my work. Okay, Okay. okay. Hmm. Okay. So I think you might have done your work. Ji, sir. Okay. So first you ask me questions you might have written. Sir, but I take help from net. No problem. It's no problem because you are in learning stage. So no problem because this is not an exam where you can't cheat. You are learning, so you may learn from any source. No problem. Yes, sir. Yeah. So my daily routine, I Yes. usually wake up. I Uh-huh. usually wake up at 8:30 a.m. on Okay. weekdays, and on weekends one day I wake up 10 a.m. Very late. Okay. Sir, why? Because every Saturday I go to Darbar Sahib complete night Oh. till 4 a.m. Hmm. Okay. Then I prepare Then I prepare my breakfast and lunch for my daughter classes and for my office. Hmm. I reach office at 10:45 a.m. My office work starts from 11 a.m. and ends till 7:30 p.m. I come back from my Actually, work. when you speak in present tense or future, instead of till, you should use by. Till usually we use in past tense. Okay. So you should say by. Like my work ends or gets over. Can use ends or gets over by 6 o'clock or Acha. by 7 o'clock, like this. Okay. I come back from my work at 7:45 p.m. Again Hmm. in the evening also I prepare lunch for myself and my family. Dinner. Uh, sorry, dinner. And after dinner I go to my gurdwara for meditation. After coming from there I prepare all my and my family clothes for next day. Then finally I go to bed at 12:20 a.m. Okay, so you go to Gurudwara, Yes, sir. but you know the Sikh people, they go to Gurudwara. No. Hmm. All. I think I know the Sikh, the Sardars, they go to Gurudwara. And you go to Gurudwara. Sir, all will go. Okay, you may go. It's not a problem, but I am just curious to know why you go there. Actually, it doesn't matter if you believe in that God is one only. The day before yesterday I told you one thing, ekam kar. Yes, God is one. Hmm. Yes. Okay, so you have done it. Now ask me questions. Now, and some questions I have made. What is your name? What would you like for dinner? Why did you ask about it? Mm-hmm. Why he's looking at me? Mm-hmm. Whose pen is this? Whose pencil is this? The both are same. And whom should we ask now? Who told you this? How did you get my number? Okay, finish. Yes, sir. Okay. And did you write the daily routine of your husband or your daughter? No, sir. Okay, that you, I expect you to do it for the next lesson. Okay. Okay, sir. Yeah. And I sent you the recording of the first lesson. Did you watch it? Yes, sir. Hmm.
Okay. Sir, in that many mistakes I have done. I have committed. जब हम I कोई have मिस्टेक committed. करते हैं ना, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो होता है डन या डू। आई हैव डन इट, मतलब अच्छा काम किया। कुछ मिस्टेक करते हैं तो कमिट, Commit. कमिट बोलते हैं ना। जैसे कई लोग सुसाइड करते हैं, उसको भी कमिट बोलते हैं। कमिट। COMMIT. यस, आई हैव रिटन देयर, Okay. आई हैव कमिटेड Okay, sir. मिस्टेक्स, मैनी मिस्टेक। और ब्लंडर बोलते हैं जब आई हैव डन अ ब्लंडर। ब्लंडर मतलब बड़ी मिस्टेक, बड़ी भूल। Hmm. ब्लंडर, Hmm. ब्लंडर बोलते हैं ना कई बार, आई हैव डन अ ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने या मिस्टेक कर दी। यस। ओके। हम्म। So it's okay. So you watch it. So do you think that recording is also useful for you to improve? Yes, sir. You may watch it many times. And even your family members, if they are interested, they can watch it. So they can learn from it. No, sir. My family members all are aged. So what? Be your daughter, your husband, they may learn. Hmm. A daughter might be busy in her study. Yes, sir. Okay. Actually, that is the matter of interest, you know. Even I have got two of the students before you, and they are 65 plus, both. They are Hmm. not from a single family. One is from Haryana, and the other one, Mr. Mishra ji, is from Jharkhand. He is 65 plus, his kidney has been, transplanted. Still, he wants to learn English. He is so positive. Really, I am very much impressed. In that condition, even he wants to learn English. Hmm. And the lady, she's widow, she's 65 plus, she's alone in her home, but still she wants to learn. And they both are learning together. So it is the matter of interest actually, doesn't matter. Age is just a number. Hmm. And it is a universal truth that everybody has to leave that world sooner or later. But one thing is, one thing should be very clear to everyone that we should not uh, stop surviving before we die. Yes, sir. मरने से पहले जीना क्यों छोड़ें? Hmm. Right? So we should not stop Survive before die. surviving before we die. Hmm. मरने से पहले क्यों छोड़ें? मरना है तो मरेंगे, that is Hmm. truth. But we should not think of it. We should think of the work which we want to do before we die. Okay, so let's come to our second, topic. Hmm. Today it is going to be little, more difficult or long, but still you have improved, or you might have observed that you have learned something even in your first lesson. Yes, You sir. think that it is going to bring some changes to your speaking. Okay, so that is the topic. Today I am going to tell you about morning time. Morning time. Okay. So this is a topic, listen to me carefully. Hmm. Morning time from 4 to 7 is a very nice time for everyone. You see, now the first one is the most of the housewives. They get up early in the morning and they finish their domestic work like cooking, cleaning, washing, because that time their husbands and children they are in the bed, so they have no disturbance. They can, or they finish their domestic work without any disturbances.
Second, most of the students, they get up early in the morning to study their books, their courses. Because morning time is very quiet, there is no noise, and the students have very, calm and cool mind. So whatever they study, they can keep it in their mind for a long time. So that time is good for the students also. Third, some of the people, they get up early in the morning and they take care of their health. So they get up, they go out of the home, they do yoga, they do some exercise, running, walking, jogging, and some stretching exercises, skipping, because they want to keep themselves healthy and fit for the rest of their life. So it means it is good for those who take care of their health. And the fourth one, some of the people, they don't get up in the morning. They want to sleep in the morning because they have sound sleep in the morning. Because they work in cinema, hospital, hotels, press. So they come back their home very late. So they go to bed late. So they want to sleep in the morning. So they don't get up, they sleep. So you see, the morning time is good for housewives, it is good for students, it is good for the people who want to take exercise, it is good for the people who want to take rest or want to sleep in the morning. So it is good for everyone. So this is the topic for you. And now I want you to repeat. It is also in present tense. Morning time 4 to 7 is a very nice time for everyone. Most of housewives do domestic work and each and every work in that cooking and all. And for most of students who are studying, morning is best time. And For more them to study. Huh. for them to study. Mhm. And in early morning only, Some of the people, they go to take exercise. some of the people for exercise, some being walking, yoga. Mm-hmm. And या next, फिर या तो इतना ही है सर. fourth one, some of the people, they sleep. Some of the people sleep in late hours. So they want to sleep in the morning because we have sound sleep in the morning. Sound मतलब अच्छी नींद आती है सुबह, ऐसा लोग बोलते हैं और सच भी है कि you have very good sleep, you don't want to get up in the morning. But I get up at 3:30 or 4. I can't sleep after 3:30 or 4. Without any alarm, without anything. Body clock is set like this. I get up and I start taking exercise. I by 10 o'clock, I finish exercise and I finish, bath, and I finish my lunch even by 10. 10 बजे तक तो मेरा सब कुछ फिनिश हो जाता है, जो मतलब मीन्स एक्सरसाइज एंड bathing and having lunch.
10 बजे तक फिनिश. I have already taken my dinner at 5:30 and now I am free. I am not going to have anything until morning 9:30. सुबह 9 9:30 तक अब कुछ नहीं, ओनली पानी पानी पानी, water. And some other things also I use, like wheatgrass juice, amla juice, aloe Hmm. vera juice, and garlic. बहुत सारी चीजें खाता हूँ सुबह मॉर्निंग में ड्यूरिंग माई एक्सरसाइज. आई टेक all these things. Okay, so it's okay. So this is the topic for you to write it in your own words. Means you should write the topics in notebook, not on computer. लिखना है आपको पेन और पेंसिल से नोटबुक पर. That will help you to improve. So that is your topic. Okay, now let's discuss something. Like present indefinite, we are focusing, we have focused. And now present continuous, it is very simple. And I think people speak in that tense even without learning it. It is very common, very simple. Like I am doing that, I am speaking right now, you are listening to me, and the class is going on Zoom. Class chal rahi hai, class is going on Zoom. I am speaking, you are listening, like this. तो ये हो गई चीज, है ना, कि मैं ऐसा कर रहा हूँ. Like I'm sitting on my chair and I'm speaking continuously, you are listening, and but suppose sometimes we speak, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, बताता हूँ पहले. Suppose you are sitting here, you are listening to me, but your daughter is in other room, suppose. और अभी आप बोल रहे हैं कि शायद वो पढ़ रही होगी या पढ़ रही है. तो अगर जैसे पॉसिबिलिटी आपको है कि अभी शायद वो पढ़ रही होगी, तो वहां पे हम तुरंत क्या यूज कर सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे शी इज स्टडिंग. शी इज स्टडिंग तो कंफर्म है कि पढ़ ही रही है. He जैसे might मैं, be studying. हाँ वेरी गुड. माइट भी बोल सकते हैं और मे भी बोल Maybe. सकते. शी मे बी स्टडिंग आई थिंक, शी माइट बी स्टडिंग आई थिंक. लेकिन आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही, पढ़ ही रही होगी वो तो. He is studying. नहीं, तब भी आप मस्ट का यूज करिए फिर, क्योंकि दिख तो रहा नहीं ना हमको. Hmm. सामने दिख रहा है, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम He must be लिसनिंग, आई एम studying. रीडिंग अ बुक. तो फिर क्या होगा, जैसे शी इज इन अदर रूम, नेक्स्ट रूम, यू Hmm. कांट सी हर, आपको दिख नहीं रहा, आप क्या, शी मस्ट बी. आई थिंक शी मस्ट बी मतलब जरूर, जरूर पढ़ी रही होगी. My husband must be dealing with the customers at his shop. इस टाइम मेरे हस्बैंड कस्टमर से डील कर रहे होंगे. My husband must be dealing with the customers this time, because this is peak time for the customers. Customers usually visit my husband's shop in the evening. तो ऐसे बोलना है. तो इसमें देखो, आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ गया और कंटिन्यूस भी आ गया. तो Hmm. मस्ट बी, मे बी, माइट बी, ये भी यूज करेंगे हम इसके साथ साथ, है ना. तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस. लाइक हम बोलते बारिश हो रही है, तो व्हाट डू यू स्पीक. Rain might be there. Rain नहीं, may be. ऐसे नहीं बोलते, हमेशा याद रखिए, हमेशा बारिश के लिए तो हम बोलते इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग.
It is raining या it's raining. इट्स रेनिंग, शॉर्ट में इट्स रेनिंग। Okay. अब जब थोड़ी थोड़ी बौछार सी गिरती है ना, जब फुहार सी गिरती है, तो उसको बोलते हैं डिजलिंग। इट्स ड्रिजलिंग। It's drizzling is spelling. इट्स ड्रिजलिंग, Okay. है ना। और जब ओले गिरते हैं तब क्या बोलते हैं? हेलिंग। हेल। जब ओले गिरते हैं कभी कभी, आपके वहां तो शायद गिरते ही नहीं होंगे बम्बई में। मतलब क्या? आइस आइस। वो ओले गिरते हैं, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े। मतलब आइस, अच्छा वो आइस ही बोल रही हूँ ना, आइस। हाँ, तो उनको हेल बोलते हैं। आपके वहां तो गिरते नहीं होंगे ओले। बिल्कुल भी नहीं। यू माइट हैव नॉट सीन इट। देखा ही नहीं होगा ओले गिरते हुए आपने कभी। कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ तो गिरते हैं, इसलिए इट्स नहीं। हेलिंग, उसको बोलते हैं Okay. हेलिंग, है ना। तो ये सब चीजें, तो इट्स रेनिंग। अब It's जैसे, अब ईडियम्स भी कुछ, वी ऑलवेज यूज ईडियम्स इन आवर इंग्लिश। हाउ, सपोज वी से कि बहुत तेज बारिश हो रही है। कभी कभी हम हिंदी में बोलते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, मूसलाधार बारिश हो रही है। सुना है ये शब्द मूसलाधार? नहीं सुना, कोई बात नहीं। तो उसको मतलब इंग्लिश, बहुत, मतलब बहुत बारिश। बहुत तेज। उसे क्या बोलते हैं? हाँ, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये ईडियम्स होते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे कुत्ते बिल्ली नहीं, कि हम बोले बारिश हो रही कुत्ते बिल्ली, नहीं। इसका मतलब है यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही। तो मूसल होता है एक, जो जिससे कूटते हैं ना आप, उसमें कुछ बड़ा सा लोहे का। हम्म। तो वो तो गिर नहीं रहा, पर हिंदी में भी वो ईडियम्स तो आई गई ना। मुहावरेदार जिसको बोलते हैं, मुहावरेदार वाक्य। तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो उसको बोलते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग, इट्स हेलिंग, इट्स ड्रिजलिंग, है ना। तो हमेशा इट का यूज करेंगे आप, यू आर गोइंग टू यूज इट विद जो नेचुरल चीजें, लाइक बारिश होना, ये सब जो मैंने बोला आपको। फॉर बर्ड्स एंड फॉर एनिमल्स ऑल्सो। इट्स अ डॉग, इट्स अ पपी, इट्स अ काऊ, ये एक गाय है, इट्स अ काऊ। किसी बच्चे को लिए लिए भी बोल सकते, इट्स अ बेबी। या कई बार हम सपोज वी स्पीक, हम बोलते हैं, लाइक आई राइट अ सेंटेंस और आई स्पीक, इट वॉज आई हु हेल्प यू दैट डे। व्हाट डज इट मीन? It was I who helped by। किसने आपको हेल्प की है वो दिन पे? मैं बोल रहा हूँ इट वॉज आई। अच्छा आई मतलब मैं ही हुई। इट वॉज आई मैं, हु हेल्प बाय दैट डे। मैंने ही हेल्प किया था उस दिन पर। वो मैं ही था। कई बार हम हम्म। बोलते हैं ना, वो मैं ही थी, वो मैं हम्म। ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी उस दिन। इट वॉज आई हु हेल्प्ड हु यू। हेल्प बाय दैट डे, ओके ओके। इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू दैट डे, बट यू हैव फॉरगॉटन इट। बोलते हैं ना इस तरह से, हम कभी कभी किसी से बात करते, मैं था, मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, पर तुम भूल गए, यू हैव फॉरगॉटन इट। नो प्रॉब्लम। तो लाइक दिस, तो इट वॉज आई, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। कई बार क्या होता है, अब वो चलो बाद में लेंगे, थोड़ा आर्टिकल्स के बारे में बता देते हैं।
कि जैसे कई बार हम बोलते ना लाइक जैसे मैंने बोला इफ इट इज इन अ पास्ट टेंस, सपोज आई वेंट टू अ डॉक्टर, आई वेंट टू अ डॉक्टर। अब ये जैसे पास मैंने ले लिया बीच में, कोई बात नहीं। आई वेंट टू अ डॉक्टर मतलब मैं डॉक्टर मैं के डॉक्टर पास के पास गया। गया। हाँ। अब यहाँ पे मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आई वेंट टू अ डॉक्टर। फिर अब क्या, जैसे मैं किसी को बता रहा हूँ आई वेंट टू अ डॉक्टर यस्टरडे। अब वो आदमी जान गया कि आप एक डॉक्टर के पास गए। अब मैं उसी डॉक्टर की बात कर रहा हूं, तो अभी तो मैंने बोला अ डॉक्टर, क्योंकि माय लिसनर डजंट नो हुज डॉक्टर दैट वाज। अब जान गया तो अब हम द यूज करेंगे। कैसे? आई वेंट टू अ डॉक्टर, द डॉक्टर वाज वेरी गुड। अभी आ नहीं बोलेंगे, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? द डॉक्टर, है ना। Problem now, I will remove it from it. Okay, so let's continue what we were talking about. I went to a doctor. I went Yes, to doctor yesterday. yes. So what? Yeah, so I went to a doctor, but now we are going. जिस चीज को हम जान गए या our listener is going to know, it means we have to use the. I went to a doctor. The doctor was very good. And so this is, article, a and a the. A means singular. An is also singular, but we use an before the words which sounds like vowel. Or some of the vowels they don't sound like vowel. Like जैसे हम बोलते हैं, vowel A E I O U. I owe you. And others are consonants. Yes, but sometimes if we say 1 rupee note, Hmm. what are you going? A 1 rupee note. Hmm. We can't say n because wow, it is actually giving you the sound of consonant. Hmm. It is vowel, but giving the sound of consonant. That's why we are going to use a. But in honest, it starts with consonant, but giving sound of vowel. Honest. That's why we say he is an honest man. Hmm. Okay? And da means जिसको हम जानते हैं या जानने वाले हैं, Hmm. like the sun, right? The Gita, the Mahabharat, like this. I went to a doctor, the doctor was an old man. अब an आ गया, an old man. The doctor was an old man. तो ये आर्टिकल मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए हैं, राइट? तो यू मे प्रैक्टिस इट। ओके, तो लेट्स कम टू द प्रेजेंट परफेक्ट नाउ। Present perfect, simple subject has had, and third form of the verb means the something which has finished or which has been finished recently। जो किसी चीज को हम जब सोचते हैं प्रेजेंट में अभी खत्म किया है हमने, लाइक आई हैव हैड माई लंच। तो इसमें यूज करेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब। अब इसमें एक चीज आज मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूँ। Present perfect, I have I have. got I it is, have got. मतलब yes, मुझे मिल गया. मिल गया, लेकिन it is very common in England। That sentence is very common and it is very useful in our daily life। How? I'm giving here some examples। Suppose
जैसे मैंने कहा मेरे को एक नई नौकरी मिल गई है, आई हैव गॉट, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आई हैव गॉट अ न्यू जॉब, आई हैव गॉट अ न्यू जॉब, Hmm. आई हैव गॉट अ कार। अब किसी भी चीज में आप बोल सकते हो, जैसे आपने बोला मेरी एक डॉटर है, आई हैव गॉट अ डॉटर। इसको आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जगह यूज कर सकते हो, हर जगह यूज करिए। लाइक माई हस्बैंड हैज गॉट अ शॉप, अब मेरे हस्बैंड की एक दुकान है, माई हस्बैंड हैज गॉट अ शॉप, Sure. आई हैव गॉट अ जॉब, आई हैव गॉट अ डॉटर। अब जैसे आपके पास स्कूटर है, यो मान लीजिए, जस्ट इट इज एन एग्जांपल, और योर कार सपोज, योर हस्बैंड हैज गॉट दैट कार फॉर अ पर्टिकुलर डे, मान ले आज वो ले गया आपकी कार, तो मैंने पूछा वेयर इज योर कार, कहाँ है, तो आपने कहा मेरे हस्बैंड ले गए आज। अब ले गए को कैसे बोलोगे, सिंपल, माई हस्बैंड हैज गॉट माई कार टुडे, मतलब वो ले गया आज। My husband, क्या बोला आपने? My husband got a हैज car. गॉट, माई My हस्बैंड husband has हैज गॉट got my माई car कार today. टुडे, यस। तो कहीं पे भी यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सपोज यू गो टू अ रेस्टोरेंट, यू आस्क द मैनेजर, Got a rest. नहीं जैसे आप, हाँ हैव यू गॉट सम रेस्ट ये भी बोल सकते हो, क्या तुमने कुछ आराम किया, हैव यू गॉट सम रेस्ट, यस आई हैव। अब रेस्टोरेंट में गए आप, वहां पे हम पूछते हैं, जैसे इफ यू गो टू एनी रेस्टोरेंट इन यूके, तो वहां पे ऐसे ही पूछते हैं लोग, कैसे, हैव यू गॉट अ टेबल फॉर टू, क्या दो लोगों के लिए आपके पास टेबल है, हैव यू गॉट अ टेबल फॉर टू। तो वहां पे भी ये यूज कर लिया, देखिए हैव यू गॉट अ टेबल फॉर टू, मैनेजर भी बोलेगा यस मैम, यस सर, आई हैव गॉट अ वेरी नाइस टेबल फॉर टू, क्लियर, Yes. आई हैव गॉट अ वेरी नाइस टेबल फॉर टू। हैव यू गॉट सम चाइनीज फूड, तुम्हारे पास है चाइनीज फूड, तो सिंपल यही पूछेंगे, हैव यू गॉट चाइनीज। अब किसी से आपको पेन लेना है, पेन मांग रहे हैं, तो ज्यादा ये फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है। जैसे आपने बोला अपने कलीग से ही कि जरा पेन देना, हैव यू गॉट अ पेन, हैव यू गॉट अ पेन, तो वो क्या बोलेगा, यस हेयर इट इज, हेयर इट इज या हेयर यू आर, तो ये आप बोल सकते हो। तो हैव यू गॉट यूज करिए प्रेजेंट परफेक्ट में, बाकी तो है ही, आई हैव डन इट, आई हैव फिनिश्ड इट, आई हैव टेकन माय फूड, आई हैव टेकन माय क्लास, आई हैव लर्नड इंग्लिश, you have taught me English. Like my daughter has passed 10th class या 10th स्टैंडर्ड, इस तरीके से आई हैव अचीव्ड, आई हैव गॉट, लाइक दिस। तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। बट हैव यू गॉट और आई हैव गॉट का यूज ज्यादा करिए, इसका एक वीडियो भेजूंगा मैं आपको, ठीक है, वो Hmm. देखिए, तो और क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। Hmm. तो ये हो गया। अब नाउ यू सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इट इज कंटिन्यूअस विथ टाइम इज ऑलवेज देयर विथ इट। हाउ वी Hmm. से, सपोज बारिश हो रही है, बट लेकिन ये तो कंटिन्यूअस है, इट इज रेनिंग, लेकिन मैंने कहा 15 मिनट से हो रही है, 1 घंटे से हो रही है, It is raining since 15 minutes. नहीं, तो उसमें फिर हमको इससे नहीं बनाना है, इट हैज बीन रेनिंग, Since 15 minutes. सिंस नहीं, फॉर,
It has been raining on for for. 15 minutes. अच्छा. It has been raining for 15 minutes or it has been raining for 1 hour. सिंस क्यों नहीं, और वेयर टू यूज सिंस एंड फॉर? देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहाँ पे होता है ना, वहां पे फॉर होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहां सिंस होगा। अच्छा. आप कैसे पहचानोगे पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम? अभी ये तो रेनिंग 15 मिनट से है तो सिंस बोलना, मुझे सिंस बोलना है. अगर ज्यादा टाइम चलता है कि भाई अभी 3 घंटे से हो रही है तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 इयर्स. 15 मिनट्स में भी आएगा। अच्छा, 15 मिनट. सिंस कहाँ पे आएगा? पॉइंट ऑफ सिंस टाइम। सिंस 3 इयर्स, सॉरी. इट हैज बीन रेनिंग सिंस 3 इयर्स से भी नहीं आएगा. नहीं, इट हैज ड्यूरेशन। बीन, सर, इट हैज बीन रेनिंग सिंस अ डे. हाँ ये चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन पता नहीं चल रहा। ओके. ड्यू अब समझिए, आप थोड़ा और इसको इजी कर देता हूँ। जो टाइम आपको कैलेंडर या घड़ी में दिख सकता है उसमें सिंस लगाएंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock, कैलेंडर में दिखेगा तो। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 10th of May, तो 10th of May दिखेगा कैलेंडर में। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर ए मंथ, नहीं दिखेगा, तो फॉर, क्योंकि ड्यूरेशन है फॉर अ मंथ, एक महीना। और जहां पे एग्जैक्ट टाइम दिख रहा है, सिंस 10 o'clock, सिंस मे, सिंस 1980, तो उसमें ड्यूरेशन का पता चल रहा है, कितने साल, वो तो काउंट करोगे तब पता चलेगा। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्लियर? क्लियर सर. आई हैव बीन, अब क्या होता है, मीन्स सम ऑफ द सेंटेंसेस दे मे नॉट लुक लाइक कंटिन्यूअस, बट टाइमिंग इज देयर। जैसे मैंने कहा मैं 30 साल से टीचर हूँ, अब क्या करोगे आप? तो आई आप एम ये टीचिंग. आप ऐसे बोलेंगे ना, आई एम टीचिंग सिंस 30 इयर्स. टीचिंग की जरूरत ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं टीचिंग, मैं तो बोल रहा हूँ टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ 30 साल से। आई वॉज टीचिंग सिंस 30 इयर्स. जो तो हो गया, पढ़ा रहा था। आई तो हैव टीचिंग जॉब सिंस 30 इयर्स. सिंस तो आएगा ही नहीं, फॉर आएगा, पहली चीज तो ये। सर दूसरी अभी चीज अच्छा, ये, हाँ, सॉरी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ओके. दूसरी चीज ये है कि मैं सिंपल ये बोलूंगा, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 30 years, सिंपल। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 30 इयर्स. ओके. यू हैव बीन हियर फॉर द लास्ट 10 minutes, आप यहाँ पे 10 मिनट से हैं। अब इसी को क्वेश्चन में बना दूं मैं, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन थाने, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन थाने, तो कब से हो आप? आई हैव बीन आई हैव बीन for 36 years. आई हैव बीन इन थाने फॉर द लास्ट 36 years, और सिंस माई बर्थ, तो आई सिंस आ हैव जाएगा। बर्थ बोला तो सिंस आएगा, आई हैव बीन हियर सिंस माई बर्थ, आई हैव बीन हियर फॉर 36 years। क्लियर हुआ? कभी कभी हम बोलते हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए ऐसे सेंटेंस,
किसी किसी को तुम तो बचपन से ही मूर्ख हो, तुम तो बचपन से ही मूर्ख हो। हालांकि since class बोलना since नहीं है वो, पर सेंटेंस है, यू हैव बीन अ स्टूपिड। अच्छा तो यू हैव बीन अ स्टूपिड सिंस योर चाइल्डहुड। किसी का तुम तो बचपन से ही गधे हो, तुम तो शुरू से ही गधे हो। अच्छा भी बोल सकते हैं किसी को, तुम तो शुरू से ही होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, ये भी बोल सकते हो। यू हैव बीन एन इंटेलिजेंट बॉय और इंटेलिजेंट गर्ल सिंस योर चाइल्डहुड। तुम तो बचपन से ही बहुत होशियार बच्चे हो। तो यू हैव बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर इन दिस सिटी? कितने समय से हो उस शहर में? आई हैव बीन हियर सिंस माय बर्थ। तो ये इस तरीके से बनेगा, है ना? ये हुआ। अभी हम जाएंगे, नाउ लेट्स गो टू पास्ट टेंस। थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं मैं आपको, ज्यादा नहीं डिटेल। यू हैव टू प्रैक्टिस इट और यू हैव टू सर, मेक। कौन से मुझे ग्रामर के टॉपिक्स आप बताएंगे? मैं एक बार स्टडी कर दूं, मेरा ग्रामर भी जैसे आप पढ़ा रहे हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है मेरा ग्रामर अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। डोंट गो डीप इनटू ग्रामर, उसमें ओके। ज्यादा जाना नहीं है। अगर यू वांट टू स्टडी योरसेल्फ, यू मे स्टडी, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू जस्ट हैव a knowledge that it is past and all. You don't have to go into deep. Just keep speaking and you'll master it. तो वो मैंने ओके। बता ही दिया। अब जैसे आर्टिकल्स आए तो मैंने आपको बता दिया बीच में कि ये होता है आर्टिकल, बस इट्स इनफ। अब डीप में जाके पढ़ोगे तो इट टेक्स टाइम एंड दैट यू डोंट नीड, उसकी जरूरत नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ टीचर। टीचर तो बनना नहीं है आपको कि वो डिटेल में नहीं पढ़ना है। नहीं नहीं। You just have some knowledge, that's all. तो ये हो गया। नाउ लेट्स गो टू पास्ट टेंस। तो पास्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, सिंपल। एंड वी मेक इट नेगेटिव बाय एडिंग डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई वेंट टू अ डॉक्टर यस्टरडे, हम्म। आई डिडंट गो टू, अब गो हो जाएगा। आई डिडंट गो टू अ डॉक्टर यस्टरडे। क्वेश्चन, डिड यू गो टू अ डॉक्टर यस्टरडे? यस आई डिड। इस तरीके से। तो ये आपको बनाना है क्वेश्चंस, कंटिन्यूअस में भी, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हाउ लॉन्ग से बनते हैं ज्यादातर वो, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग हियर? जैसे आपने अपने बच्चे से पूछा, कब से खेल रहे हो तुम यहाँ? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग हियर इन द ग्राउंड? वो बोलेगा, मम्मा आई हैव बीन प्लेइंग हियर फॉर 15 मिनट्स ओनली। लेट मी प्ले फॉर सम मोर टाइम। मुझे और खेलने दो। आई हैव बीन हियर फॉर 15 मिनट्स ओनली। 15 मिनट ही हुए हैं मुझे तो। लेट मी प्ले फॉर एन आवर, 1 घंटा तो खेलने दो मुझे। लाइक दिस, है ना? तो ऐसे बनाइए, आप खूब सारे बनाइए, लिंक करते जाइए सेंटेंस, लिखिए उसको कॉपी में। कैसे? कुछ भी कहीं से भी उठा लीजिए सेंटेंस, लाइक आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ये बोला आपने, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। नाउ आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट। उसी में नेक्स्ट सेंटेंस बना दिया, फुल स्टॉप। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, इंग्लिश होमवर्क। नाउ नाउ टेक रेस्ट। आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट। हम्म। फिर उसके बाद क्या करना है? जैसे उसके बाद सब आई एम गोइंग टू से बनाइए।
तो आई एम गोइंग टू क्या होता है, इंग्लिश इज वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। आई एम गोइंग टू फ्यूचर भी हो सकता है और नियर फ्यूचर भी हो सकता है। ये एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, जैसे आई एम गोइंग टू डू दैट, आई विल डू दैट, सेम ही बात है ना। तो आई एम गोइंग, उसके बाद फिर बोलो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर डिनर फॉर माई फैमिली। कब? तो जैसे आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट, अब आप बोलोगे रेस्ट करने के बाद, रेस्ट करने के बाद मैं डिनर बनाऊंगी। तो आफ्टर टेकिंग रेस्ट कॉमा, आफ्टर टेकिंग रेस्ट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर डिनर फॉर माई फैमिली। फिर आई एम गोइंग टू हैव डिनर विद माई फैमिली। अब किसी से क्वेश्चन कर लिया बीच में, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, अब तुम क्या करने वाले हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन फ्यूचर, अब भविष्य में क्या करना है तुमको, क्या करने वाले हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दैट सिचुएशन, अब इस सिचुएशन में क्या करने वाले हो। उसने कहा आई एम गोइंग टू डू समथिंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई विल आस्क फॉर सम हेल्प, आस्क फॉर का मतलब था मांगना, हाँ, तो आई विल आस्क समवन। तो अब जैसे किसी से हेल्प मांगूंगा, है ना, तो आई विल, या आई एम गोइंग से ही बनाते हैं, चलिए आई एम आई एम गोइंग, गोइंग टू टेक हेल्प। हाँ ये भी बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू। पर आस्क फॉर क्यों बता रहा हूं मैं, जिससे कि नई चीज सीखो आप। टेक तो है ही, वो तो आपको पता ही है। आई आई एम एम गोइंग टू गोइंग। आस्क, आस्क मीन्स समवन। देखो आस्क का मतलब पूछना भी होता है और किसी से कुछ काम करने के लिए भी कहना होता है। जैसे आपके हस्बैंड ने डॉटर से कहा, बेटा गो एंड आस्क योर मदर टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, आस्क योर मदर टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, जाओ और अपनी मम्मी से कहो मेरे लिए एक कप चाय बनाए। तो गो एंड आस्क योर मदर टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। लेकिन आस्क फॉर का मतलब हो जाता मांगना। तो आई एम गोइंग टू आस्क समवन फॉर हेल्प, ये हो गया। आई एम गोइंग टू आस्क समवन फॉर हेल्प, तो किसी से हेल्प मांगूंगा, ठीक। आई एम गोइंग टू आस्क समवन फॉर, समवन फॉर हेल्प। अब किसी ने आपसे कहा कुछ पैसे दे दो मैडम, प्लीज लैंड मी सम मनी, आपने कहा डोंट, हाँ, यस, एलियन। LEND, लैंड माने लैंड मी, मुझको दे दो, उधार दे दो। और बोरो मतलब होता है उधार लेना, आई वॉन्ट टू बोरो सम मनी फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू लैंड यू सम मनी, मैं तुमको देना चाहता हूँ। अब आपने कहा डोंट आस्क मी फॉर मनी, मेरे से पैसा नहीं पूछो। नहीं मांगो, हम्म, मांगना, डोंट आस्क मी फॉर मनी, पैसा नहीं मांगो मेरे से, आई हैव नो मनी फॉर यू। वैसे भी क्या है, यू शुड नॉट डिनाई एनी वन डायरेक्टली, घुमा के बोलोगे तो आप जानते ही होगे दुनिया ही ऐसी है। इफ यू स्पीक बिटर ट्रूथ बिफोर पीपल, दे डोंट लाइक इट, बट इफ यू स्पीक इन हनीड वर्ड, हनीड वर्ड समझते ना आप, जैसे चिकने चुपड़ी बातें करो आप, हनीड, हनीड मतलब शहद में लिपटी हुई बातें, हनीड वर्ड।
हनीड मतलब शहद में लिपटी हुई, तो हिंदी मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करना। Hmm. So if you talk to someone in honeyed words, they like it. They know you are lying. Even if you praise someone, they know it is lying, but they feel happy. लोगों को पता होता है ये झूठ बोल रहा है, फिर भी सही लगता है उनको, हाँ ये सही। But if you tell them the bitter truth, they don't like it. Okay, that is people's nature. तो ये आप what you are going to do for your next lesson, you have to write the topic, morning time, Hmm. write the routine of your husband or daughter using as, yes, IES with verb, and make questions using all these tense: present, indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Okay, and use have you got a lot, and use I have been, have you been. अच्छा, एक चीज और याद आ गई मुझे। यूजुअली भी हम पूछते हैं, जैसे सपोज योर हस्बैंड इज लेट टुडे और संडे, लेट आए वो रात को, तो यूजुअली द वाइफ्स दे गेट एंग्री, दरवाजा खोलते हैं, पूछते हैं इतनी देर तक कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन, Hmm. वेयर हैव यू बीन। तब कहाँ थे वो, तो वो बोलेंगे आई हैव बीन आउट फॉर बिजनेस, फॉर डिनर, जिसके लिए भी थे, आई हैव बीन आउट टू लंच, आई हैव बीन आउट टू डिनर, आई हैव बीन आउट टू बिजनेस, जिस चीज के लिए भी थे, वेयर हैव यू बीन। कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं जैसे कि मैं दिल्ली कई बार गया हूँ, है ना, आई हैव बीन टू दिल्ली मैनी टाइम्स। बिफोर, Hmm. बिफोर, बिफोर मतलब पहले, आई हैव बीन टू दिल्ली मैनी टाइम्स बिफोर, पहले भी कई बार गया हूँ। Hmm. इस तरीके से आपको बनाना है। दैट इज योर होमवर्क, and try to speak more and more and more before mirror. Whenever you get time, start speaking to yourself. Hello Nishika, how are you? I'm very fine, thank you. What about you? I'm very well. Today I am little busy, so I can't talk to you anymore. बोलते जाओ, बस जो भी मन में आए ना, गलत सलत बोलते जाओ। Please talk to me for some time. I have told you I have no time today. I am quite busy. I can't talk to you anymore. Listen, please listen to me. It's important. I want to share something with you. What do you have to share with me? Share it quickly. ऐसे मतलब बनाते जाओ, जोड़ते जाओ, लिंक करो, बोलो, अपने आप से बातें करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। जस्ट बी इनसेन, पागल बन जाओ, पागल, टू स्पीक इंग्लिश। मीन्स उस लेवल तक जाना है, कहते हैं ना, पागलपने की हद तक जाओगे तभी कोई चीज मिलती है। यू मे एग्री विद मी और मे नॉट, आई डोंट नो, पर शायद इतना तो आप समझते ही हैं कि यू बिलीव इन गॉड,
आप भगवान की इतनी पूजा करते हो, उनकी आराधना करते हो, तो ये समझते होगे कि भगवान भी तभी मिलेगा जब पागल बन जाओगे आप। तो हाँ, of course sir. तो भगवान तो सब जगह है। आप मेरे अंदर देखोगे तो मेरे अंदर दिखेगा, मैं आपके अंदर देखूंगा Right. तो आप अंदर भगवान मिलेगा। एक जानवर में, चींटी में, पक्षी में, सब जगह भगवान है। Hmm. तो वो Hmm. नजर केवल आपको ये प्रार्थना दे सकती है कि सबके अंदर भगवान दिखे, है ना। लेकिन यू हैव टू बी पागल, इनसेन, टू गेट समथिंग। Hmm. और जो पागल हो जाते हैं उनको ही कुछ मिलता है जीवन में। तो ये तो बनना ही पड़ेगा हमको। Hmm. लग जाओ, मैं तो करके रहूंगी। आई डू इट एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मीन्स योर एफर्ट, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, एवरीथिंग। उसमें जुट जाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, कमरा बंद करो, क्लोज द डोर, स्टार्ट स्पीकिंग। फिर देखो, यू विल एंजॉय इट। अरे मैं बोलने लगी, आई एम एबल टू स्पीक नाउ। तो ये सब चीजें करिए। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। You will be able to improve a lot, I think, but try to speak more and more. And टॉपिक्स को लिखिए, क्वेश्चन खूब बनाइए, Okay sir. जितना बना सकते हो। टेक द हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, कॉपी फ्रॉम एनी सोर्स, आई हैव नो प्रॉब्लम। Okay. लिखो, कम से कम 100 क्वेश्चन लिख डालो, उनको पढ़ो, रीड इट लाउड। ओके, ओके, तो सी यू ऑन Okay आज sir. मंडे, Hmm. वेंसडे। Yes sir. ओके, गुड नाइट। Thank you sir. Good night. गुड नाइट।